شامل کریں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف سے گزشتہ روز ایف آئی اے حکام نے سائفر معاملے پر تحقیقات کی ہیں۔ جے آئی ٹی ممبران نے اٹک جیل میں پوچھ گچھ بھی کی ہے۔ اسی بارے میں مزید ڈیٹیلز لیں گے ثاقب سید سے۔ ثاقب، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل، چیئرمین تحریک انصاف سے گزشتہ روز ایف آئی اے حکام کی جانب سے تحقیقات کی گئی ہیں۔ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ سائبر گمشدگی کے معاملے پر جے آئی ٹی ممبران نے اٹک جیل میں پوچھ گچھ کی۔ ہمارے ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف سے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے آفس میں ملاقات کی گئی ہے۔ مزید آپ کو بتا چلوں کہ جیسے کہ آج اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ بھی آج ایف آئی اے پیش ہوئے اور اس سے پوچھ گچھ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے آج سابق وزیر اعظم پر، اس میں محمد قریشی کو بھی نامزد کیا ہے۔ جی ثاقب سید اپڈیٹ کر رہے تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کے انسداد دہشت گردی ونگ میں سائفر کی گمشدگی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، جبکہ سائفر تحقیقات کے حوالے سے سابق سیکرٹری اعظم خان جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ اعظم خان سے سائفر سے متعلق سوالات پوچھے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر ایک مزید مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی اے کے انسدادی دہشت گردی ونگ میں سائفر کی گمشدگی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ انسدادی دہشت گردی ونگ میں تعینات ڈی آئی جی لیول کے افسران سائفر کے حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ایف آئی اے آفس میں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ ذرائع کے مطابق اعظم خان سے سائفر کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی اور ضمانت کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق جسٹس طارق محمود جہانگیر 22 اگست کو سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے کاز لسٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی اور ضمانت کی اپیلوں پر سماعت 22 اگست کو چیف جسٹس کی سربراہی میں ڈویژن بینچ کرے گا۔ عدالت نے ابتدائی سماعت پر چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیلوں پر سماعت کے لیے فریقین کو نوٹسز جاری کر رکھے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کر کے رہائی کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر ہے۔ عدالت نے توشہ خانہ کیس کا مکمل ریکارڈ طلب کر رکھا ہے۔ گزشتہ سماعت پر چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے اپیل جلد مقرر کرنے کی استدعا کی تھی۔ سپریم کورٹ نے این اے 131 لاہور میں دوبارہ گنتی کروانے کے کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست غیر مؤثر ہونے پر نمٹا دی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی مدت پوری کر کے تحلیل ہو چکی، اب نئے انتخابات کا انتظار کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے این اے 131 لاہور میں دوبارہ گنتی کروانے کے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ دوبارہ گنتی کی اپیل تو اب غیر مؤثر ہو چکی ہے، جس پر وکیل بابر اعوان نے کہا کہ اپیل غیر مؤثر تو ہو گئی ہے، اگر عدالت اجازت دے تو معاملے پر چیئرمین پی ٹی آئی سے نئی ہدایات لے لوں۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، اسمبلی تحلیل کے بعد اس معاملے پر کیا ہو سکتا ہے، اب نئے انتخابات کا انتظار کرنا چاہیے۔ عدالت نے درخواست غیر مؤثر ہونے پر نمٹا دی۔ شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی گرفتاری کے خلاف درخواستوں کی سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا غیر تسلی بخش جوابات دینے پر ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی آپریشنز کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ عدالت نے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی ایم پی او کے تحت گرفتاری کالعدم قرار دیتے ہوئے دونوں رہنماؤں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی گرفتاری کے خلاف درخواستوں کی سماعت کی۔ جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا کہ شہریار آفریدی کس کی معلومات پر گرفتار ہوئے، جس پر عدالت میں دلچسپ صورتحال دیکھنے کو ملی۔ ایس ایچ او نے کہا کہ سر میں اس وقت وہاں ایس ایچ او نہیں تھا، پہلے کوئی اور ایس ایچ او تھے۔ ڈی پی او نے کہا کہ سر میں اس وقت چھٹی پر تھا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے عدالت کو بتایا کہ آئی بی اور اسپیشل برانچ کی رپورٹ تھی کہ شہریار آفریدی ڈسٹرکٹ کورٹ پر حملے کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ عدالت نے پوچھا کہ جیل میں یہ پلاننگ کیسے کر رہے تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے موقف اپنایا کہ میری آنکھیں اور کان تو انٹیلیجنس رپورٹس ہی ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ کیا مذاق ہے کہ ہائی سیکیورٹی زون میں بیٹھا قیدی عوام کو اکسا رہا تھا، تو انہیں عدالت کی 6 ماہ سزا ہے۔ آپ کا جواب غیر تسلی بخش ہے، آئندہ سماعت پر آپ کے خلاف تو انہیں عدالت کی فرد جرم عائد ہوگی۔ عدالت نے ایس ایس پی آپریشنز کا جواب بھی غیر تسلی بخش قرار دیا۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، عدالت ایم پی او آرڈر کالعدم قرار دیتی ہے اور
फिर नया ऑर्डर जारी हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने SSP ऑपरेशन पर भी अगले हफ्ते फर्द जुर्म आयद करने का फैसला दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी करते हुए मुतल्लिका अफसरान के नाम फराहम करने की हिदायत कर दी। अदालत ने शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की MPO के तहत गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी। अदालत ने शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार को मीडिया और सोशल मीडिया पर बयानात न देने और केस की समाअत मुकम्मल होने तक इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत की। नई हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इजलास में आज भी कोई फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन ने एक और इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। नई हल्का बंदियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में इमरान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और स्पेशल सेक्रेटरी समेत कानूनी टीम शरीक हुई। इजलास में नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों के मामले पर गौर किया गया। कानूनी टीम ने हल्का बंदियों के हवाले से आइनी और कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में इलेक्शन कमीशन किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। मामले पर मजीद मशावरत का फैसला किया गया, जिसके लिए एक और इजलास बुलाया जाएगा। हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला आइंदा इजलास में करेगा। निगरान हुकूमत ने आते साथ ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 17 रुपये 50 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 20 रुपये का बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे मुकर्रर, जबकि डीजल की नई कीमत फी लीटर 293 रुपये 40 पैसे हो गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुँचने के बाद शहरी शदीद मायूसी का शिकार दे रहे हैं। कहते हैं कि जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हो चुकी है, हुकूमत आवाम के हाल पर रहम करे। मजीद क्या कहा, ज़िशान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। मुल्क में ईंधन की कीमतें और आवाम का गुस्सा दोनों आसमान पर। परेशानी, ये आप इसको परेशानी कहते हैं, इन्होंने जिंदा मार दिया है आवाम को। हम मजदूरी करते हैं, हमें यकीन करें वो रेट नहीं मिलते जो रेट जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं। शहरी कहते हैं कि तकरीबन 300 रुपए लीटर के ईंधन में न गाड़ी चलाना मुमकिन है न जिंदगी की गाड़ी। कीमतें तो बढ़ गया, तो अभी क्या करें, सुबह उठता है 10 रुपये 15 रुपये बढ़ जाता है। ये कैसे हिसाब किताब है? एक बार बढ़ा दो फिर भी सही है, बार बार बढ़ाएगा तो ये तो अच्छा नहीं है। अभी हम इधर आ गया, वो रेट बढ़ा हुआ था, हमको पता ही नहीं था। अल्लाह खैर करे कि आगे क्या होगा। पेट्रोल का तो कोई हाल ही नहीं है ना। कहते हैं कि कम करेंगे, कम करते हैं 5 रुपए 10 रुपए और बढ़ाते हैं 30-40 रुपए। शहरी कहते हैं कि अरबाब इख्तियार मौशी आदाद शुमार से हटकर मौशी बहाली और आवाम को महंगाई से बचाने के अमली इक़दाम करें ताकि आवाम के लिए जिंदगी आसान हो सके। ज़िशान अहमद, कराची अब तक। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में आवाम ने एक माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दूसरी बार इजाफा मुस्तरद कर दिया। आवाम का कहना है कि निगरान हुकूमत रिलीफ दे, तकलीफ नहीं। महंगाई से 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। हर हफ्ते बाद मेरे मतलब 8 रुपये 10 रुपये 20 रुपये बढ़ रहा है। अभी एक हफ्ता पहले 20 रुपये बढ़ा है, अभी फिर उन्होंने बढ़ा दिया है, तो काफ़ी परेशानी हो रही है हमें। तो अल्लाह मियाँ इनको हिदायत दे दे, बस हम तो यही कहेंगे। हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि ये पेट्रोल सस्ता करें, क्योंकि गरीब आवाम का पहले ही जो है ना गुजारा बहुत मुश्किल है। तो अभी पेट्रोल महंगा होगा तो तकरीबन हर चीज़ ही महंगी होगी। केयर टेकर गवर्नमेंट ने आते ही लोगों को जो सरप्राइज़ दिया है, ये पेट्रोल का बहुत ही बुरा किया है। लोग तो बेचारे पहले महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं, ऊपर से पेट्रोल पंप और गिरा दिया। कीमतें तो बढ़ गया, तो अभी क्या करें, सुबह उठता है 10 रुपये 15 रुपये बढ़ जाता है। ये कैसे हिसाब किताब है? एक बार बढ़ा दो फिर भी सही है, बार बार बढ़ाएगा तो ये तो अच्छा नहीं है। अभी हम इधर आ गया, वो रेट बढ़ा हुआ था, हमको पता ही नहीं था। अल्लाह खैर करे कि आगे क्या होगा। पेट्रोल का तो कोई हाल ही नहीं है ना। कहते हैं कि कम करेंगे, कम करते हैं 5 रुपए 10 रुपए और बढ़ाते हैं 30-40 रुपए। बेचारे जिसकी 25,000 तनख्वाह है, 30,000 तनख्वाह है, वो इसमें कैसे गुजारा करेगा? पेट्रोल डलवाएगा या अपने घर के अखराजात पूरे करेगा? बहरहाल हमारी अपील है हुकूमत से, मेहरबानी करके कुछ हमें रिलीफ दिया जाए। पहले थोड़ा महंगा पेट्रोल था, अब एकदम इन्होंने 17 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया है। अब हम स्टूडेंट लोग हैं, हम किस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करें? साईं बिल्कुल पड़ेंगे, गरीब आदमी मरेगा और क्या होगा। हम मजदूर आदमी हैं, हम कहाँ जाएंगे? पेट्रोल इतना महंगा हो गया है और सवारी मिलती नहीं है, क्या करें?
सर ये देखो पेट्रोल फिर बढ़ गया, हर चीज़ की महंगाई है, साल में एक दफ़ा बजट लगता है, एक दफ़ा सैलरी बढ़ती है और महंगाई इनकी 3 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 15 दिन के बाद बजट बढ़ता है। ये तो सब हमारे साथ निजाजी कर रहे हैं आप लोग, 2 नंबरी कर रहे हैं कि बजट एक दफ़ा साल में दे रहे हो, बाकी हर चीज़ का 2 महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में बजट लगाते जा रहे हो। कमबैक साइफर स्कैंडल के मरकजी किरदार सेक्रेटरी खारजा असद मजीद खान आज रिटायर हो रहे हैं। सफारती ज़राए के मुताबिक स्पेशल सेक्रेटरी सज्जाद काजी आज बतौर सेक्रेटरी खारजा ओहदा संभालेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं अब तक की नुमाइंदा राशिदा सयाल से। जी राशिदा। जी बिल्कुल, साइफर स्कैंडल के मरकजी किरदार सेक्रेटरी खारजा असद मजीद खान आज रिटायर हो रहे हैं। सिफारती ज़राए का कहना है कि असद मजीद खान वजारत खारजा के 31वें सेक्रेटरी खारजा हैं। असद मजीद खान अमरीका में पाकिस्तान के सफीर भी रह चुके हैं। असद मजीद खान के बतौर सफीर अमरीका से मुतनाज़ साइफर स्कैंडल भी नमूदार हुआ था। स्पेशल सेक्रेटरी इस वक्त साइरस सज्जाद काजी आज बतौर सेक्रेटरी खारजा अपना ओहदा संभाल लेंगे। गुज़िश्ता दिनों साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साइरस काजी को नया सेक्रेटरी खारजा लगाने की मंजूरी दी थी। साइरस सज्जाद काजी इस वक्त वज़ारत खारजा में सीनियर तरीन अफसर हैं। ये मैं आपको बताती चलूँ कि असद मजीद खान ने आज ऐवान में सदर आरिफ अलवी से अलविदाई मुलाकात भी की है। असद मजीद खान की आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से भी मुलाकात मुतवक्के है, जबकि मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी ने बतौर सेक्रेटरी खारजा आज अपना ओहदा संभालेंगे। वो अमरीका के अलावा पाकिस्तान के हंगरी और तुर्की में भी बतौर सफीर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। जी, सेक्रेटरी खारजा असद मजीद खान आज रिटायर हो रहे हैं। अपडेट कर रही थी। अहम खबर है तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीदें बनाने का मामला। अदालती अहकामात के बाद बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो गई। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने 25 सवाल तैयार किए मगर 23 सवाल बुशरा बीबी से पूछे। बुशरा बीबी ने जाली रसीदें बनाने के इल्ज़ामात को रद्द कर दिया। तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीदें बनाने के मामले पर आपको अपडेट करेंगे। अदालती अहकामात के बाद बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो गई हैं। ज़राए का यह कहना है कि तफ्तीशी टीम ने 25 सवाल तैयार किए मगर 23 सवाल बुशरा बीबी से पूछे गए। बुशरा बीबी ने जाली रसीदें बनाने के इल्ज़ाम को रद्द कर दिया है। तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीदें बनाने का मामला। अदालती अहकामात के बाद बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो गई। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने 25 सवाल तैयार किए मगर 23 सवाल बुशरा बीबी से पूछे। बुशरा बीबी ने जाली रसीदें बनाने के इल्ज़ाम को रद्द कर दिया है। अदालती अहकामात के बाद बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो गई हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर है। अमरीकी महकमा खारजा ने नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि यकीनन हम पाकिस्तान के साथ बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में शराकत दारी जारी रखेंगे, जिसमें पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और खुशहाली और सलामती में हमारी दिलचस्पी, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद और जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी का एहतराम शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फ़ौज का बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें निखारने के लिए अहम कदम। अनोखा शाहकार वेली गाड़ी बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। पेशावर में बच्चों की तफरीह के लिए पाक फौज की जानिब से व्हीली गाड़ी का इंतजाम किया गया। व्हीली गाड़ी सड़कों पर चलती फिरती मोबाइल लाइब्रेरी और इंफोटेनमेंट की दुनिया का एक अनोखा शाहकार है। व्हीली की आमद से पेशावर के गली कूचों में तो जैसे रौनक लग गई। व्हीली में बच्चों के लिए कहानियों की किताबें, खिलौने, मुख्तलिफ गेम्स और वीडियो गेम सिस्टम समेत फिल्म सिस्टम भी मौजूद है। बच्चों ने गाड़ी की सहूलत मिलने पर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि व्हीली की आमद से हम सब बहुत बच्चे सारे बाहर कार्टून देख रहे हैं, हमें लम्हे सुनाए जा रहे हैं। यहाँ पर बुक्स हैं, इंफॉर्मेशन है इन बुक्स में और हम बुक्स भी पढ़ रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं और हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू पाकिस्तान आर्मी। मैं आज जिले में आई हूँ, ये बहुत प्यारी टोल है, मैं इसके साथ खेल रही हूँ। थैंक यू पाकिस्तान आर्मी। दिल्ली पे आई हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, यहाँ पे टार्जन की भी है और कायदे आज़म की भी बुक्स हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खिलौने हैं, मुझे बहुत मज़ा आया। और बाहर अभी मैं जाऊँगी, कार्टून्स लगेंगे। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। हर उम्र के बच्चे व्हीली में खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। बच्चों के इस जज्बा ने बड़ों के दिल भी मोह लिए हैं और वो पाक फौज के इस इक़दाम पर बहुत खुश हैं।
अहम खबर है, फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वहाब रियाज अबूरी पंजाब हुकूमत में वजीर खेल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने 2010 में डेब्यू किया। 27 टेस्ट में 83, 91 वनडे में 120 और 36 टी20 में 34 खिलाड़ी आउट किए। 38 साल वहाब रियाज ने वर्ल्ड कप 2019 के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। फास्ट बॉलर फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते रहेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।